پاس ان کی تعلیم کا مصدق رسول آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ان پر فرض عین ہوگا۔ تصدیق سے مراد یہاں صرف اس کتاب حکمت کی سچائی کی تصدیق کرنا نہیں، کیونکہ یہ تصدیق تو ہر مومن کرتا ہے۔ مصدق رسول سے مراد ایسا رسول ہے جو کتاب میں موجود پیشنگوئیوں کو پورا کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا۔ علماء استغفر اللہ ربی، سنے ساری پڑھیں گے پھر دیکھ۔ علماء لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ عہد علماء نہیں علماء، علماء لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ عہد انبیاء سابقین سے تو لیا گیا تھا کہ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لیا گیا۔ یہ علماء کے اندر مرزا صاحب آتے ہیں جوان صاحب؟ مرزا صاحب کے مطابق تو یہ نہیں ہے، مرزا صاحب نہیں ایک ہی مصدق ہو رہی ہے۔ جوان صاحب سن لیں ایک دفعہ، علماء لوگ یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ عہد انبیاء سابقین سے تو لیا گیا تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نہیں لیا گیا۔ مرزا صاحب یہی کہتے ہیں نا ان سے نہیں لیا گیا؟ ہاں جی، مرزا صاحب یہی کہتے ہیں، ہاں بالکل ان سے نہیں لیا۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو کسی نئے مصدق رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ اس آیت کریمہ میں ایسی کوئی قرینہ موجود نہیں جو علماء کی اس بات کو کسی بھی درجے میں ثابت کرتا ہو، لیکن درجہ ذیل آیت وضاحت طور پر اس بات یعنی کا اعلان قرینہ کر رہی ہے۔ موجود نہیں ہے پھر بھی، قرینہ موجود نہیں پھر بھی مرزا صاحب نے یہ گل کہتی۔ سنیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پر مغل جی، جب جو آگے جا کے بات ہونی ہے اس سے بھی آگے ہے، ٹھہر جاؤ، کہ یہ میثاق النبیین سے بھی لیا گیا تھا۔ یہ آگے انہوں نے وَأَخَذْنَا مِن نَبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ ایک آیت آ گئی، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عہد نہ صرف انبیاء سابقین سے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، جس کی روح سے امت محمدیہ میں بھی یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اسلام کی تصدیق کرے تو اس کو مانے اور اس کی مدد اور نصرت کرے۔ آگے جی چوہان صاحب جی مین چیز آن لگی جی ذرا ویکھو، میثاق کو توڑنے اور بعد عہدی کی سزا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پیش کی ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جبکہ اے آدم وہ تم سے میثاق لے چکا ہے، بہتر ہوتا اگر تم ایمان لانے والے ہوتے۔ اس آیت کی ایک مرتبہ یہ تو تاکید کی گئی ہے کہ اپنے میثاق کو پورا کرے اور رسولوں کو مانے۔ یہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا بلکہ لوگوں کو اسی خدا کی طرف بلا رہا ہے جس پر وہ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں۔ مدرجہ ذیل آیت کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو توڑنے کا نتائج پر سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے یہ پھر ایک آیت دی، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کی پختگی سے باندھے کے بعد توڑتے ہیں اور اسے قطع کرتے ہیں جس کو تو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ آگے یہ ابھی سننا جی چوہان صاحب، بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب نے جن کا دعویٰ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا ہے، جس کی خبر قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے، نہ صرف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کے مکمل تصدیق کی ہے بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ قرآن و حدیث کی موجودگی بھی پوری ہوئی، جن میں سورج اور چاند کا رمضان میں گرہن
تابل ارض یعنی زمین کا کیڑوں کے ذریعے بیماری سے ہلاک یعنی طاعون کا پھیلنا، بڑے پیمانے پر جنگوں کا ہونا، جدید سواریوں کا ایجاد ہونا، سمندروں کا ملایا جانا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ قرآن مجید کی ان وضاحت حیات کی روشنی میں بحثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے میثاق کو پورا کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ تبلیغ اسلام کے مشن میں ان کی مدد کریں۔ چوہان صاحب، یہ تو اگر یہ دیکھا جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مرزا صاحب کے، دیکھیں مثال کے طور پہ، اگر وہ میثاق پورا نہیں کرتے تو پھر ان کی سزا یہی ہوئے گی جو لکھی ہوئی ہے۔ آپ چوہان صاحب کو مخاطب نہ کریں۔ پہلے نمبر پہ تو واٹر صاحب نے نعوذ باللہ۔ جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو اس کی پہلے عربی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھنا کہ احمدی کیسے پڑھتا ہے، اور اب مسلمان نے تو پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھوں پھر بتاتے ہیں آپ کو۔ نہیں بھائی، بڑے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ إِلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں یہ اوپر سے دیکھ کر پڑھا آپ نے؟ تو کہاں سے پڑھنا تھا؟ دیکھیں، نہیں، زبان نہیں پڑھا کہ اوپر سے دیکھ کر پڑھا؟ اوپر سے دیکھ کے پڑھا۔ سارے غلط پڑھا یار، خدا کا خوف کھائیں۔ ایک بھی لفظ صحیح نہیں اس میں آپ نے بولا، ایک بھی لفظ میں جب ان کو سنتا پتہ ہی رہا نہیں ہوں کہ صحیح کیسے ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ غلط پڑھا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں اس وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، کیا اس میں غلط ہے؟ کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس میں کیا غلط ہے؟ دوبارہ پڑھیں، ایک سیکنڈ ذرا ہو گیا۔ میں نے سمجھا شاید آپ نے زبان نہیں پڑھا ہے، سارے راہ بھی غلط پڑھے ہیں۔ چلو ٹھیک رہیں ذرا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، کیا غلط ہے اس میں؟ چلو پھر پڑھ لیں دینے، پھر پڑھ لو پائیں، پھر پڑھ لیں، کوئی دوبارہ پڑھیں، پڑھ رہا ہوں میں، پہلے کی طرح پڑھیں جس طرح پہلے پڑھ رہے تھے نا۔ نہیں مجھے صبر بتائیں صاحب، ذرا۔ آپ اپنی غلطی مان لیں۔ نہیں غلطی عامر نہیں صاحب ماننی، کی تو مادری غلط بات زبان کر رہے عربی ہیں۔ ہے ماشاءاللہ، نہیں غلط وہ تو بات صحیح کر پڑھیں رہے گے۔ ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ میں مجھے بتایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس میں کیا غلط ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ جو ہے نا میثاق النبیین، اس میں نون کے آگے الف نہیں ہے، میثاق النبیین لما ساتھ ہی وہ تو آگے پڑھیں گے نا جا کے نا، یہاں تک کیا غلطی ہے؟ میثاق النبیین نہ نہیں پڑھنا۔ تو نون کے اوپر زبر کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہاں، اس کو بھی آپ حکمہ، اس کو بھی آپ آگے میں بتاتا ہوں۔ حکماتن، آگے بتائیں اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں، آپ نے پہلی تو بات ہے یہ جو ہے نا لما آتیتکم، اس کو آپ نے پچھلی ریکارڈنگ کھول کے دیکھ لیں، آپ نے لیما پڑھا ہے حالانکہ لما ہے۔ یار میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں ریکارڈنگ پیش کر دوں گا۔ آپ نے چلو میں لیما اب آپ کے پڑھا ہے، سامنے پڑھ رہا ہوں نا۔ لما آتیتکم، اس میں کیا غلطی ہے؟ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے لیما پڑھا ہے، لما ہے، لما آتیتکم، میم کے آگے الف ہے، اس کے اوپر مد ہے، اور مد ہے، الف ٹھیک ہے، جو الف ہے اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ اس کو لمبا ما کرنا کو بھی ہے، لمبا کرنا ہے، آ کو بھی ٹھیک لمبا ہے، کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لما آتیتکم ٹھیک من ہو گیا۔ کتاب و حکمت، وحکماتن، اس میں کیا غلطی ہے؟ حکمات نہیں ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا حکمہ، سن لینا۔ وحکمتن، آپ نے جو پہلے پڑھا ہے نا، جب میں کھانا کھا رہا تھا، آپ پڑھ رہے تھے من کتاب و حکمہ، یہ ہے آپ کی ریکارڈنگ، نکال کے دیکھ لیں۔ حکمتن، ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ آگے آ گیا
सुम्मा जाअकुम, इसमें क्या गलती है? सबर साइड कोई गलती निकाले ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह कह के उसको नहीं, वो एक्सेप्ट कर नहीं, लेना वो आते चाहिए, ही कहते हैं कि सारा ही गलत पढ़ लड़ाई नहीं सारे करनी सारे चाहिए। मैंने क्योंकि देखा सारे सारे अगर कोई आपकी तस्हीह करता है ना तो वो आपके ऊपर एहसान कर रहा होता है, चलो जी मुगल जी आप भी पढ़े क्योंकि जरा, कोई भी शख्स आप परफेक्ट भी नहीं पढ़े है। जरा, ठीक है मुगल जी आप पढ़े जरा, मैं पढ़े जरा। उनको पुराने तो डर में था ना गलत हो जाएगा, इसलिए तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना। हाँ पढ़ मैं सकता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ सकता, उनको पढ़ डर सकता था हूँ। कि गलत हो जाएगा। नहीं यार, नहीं पढ़ सकते तभी तो नहीं पढ़ा। अच्छा आगे पढ़ें। वाटर भाई आप पढ़ दे, वाटर भाई को पढ़ने दे, अमर भाई। पहले जरा अमर साहब को पढ़े ना, हम अपना उस्ताद चेक करें रसूलुम, कि जो हमारा उस्ताद बन के बैठा है उसको भी कुछ आता है कि नहीं। तो पहले तो हमारे उस्ताद साहब पढ़े। उस्तादी शिगिर्दी की बात नहीं है, कोई भी नेकी की बात कोई बता रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना ये चाहिए। नेकी की नहीं, और आपकी बहस बदनीति की की इसमें बात क्या है भाई। बात है, ना कोई आप कुश्ती हो रही बदनीति है ना लेकर कुछ। आते हैं हर आगे नेक चलें, काम में भी। जो बात इसके ऊपर कोई करनी है वो आपका करें। नेकी नुकी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी बदनीति होती है हर बात में कि हम शरारत करें बस किसी तरह, और कुछ नहीं। जैसे मना कर रहा हूँ मिर्जाई, यार तेरी अकल कैसे मारी गई तेरी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ शरारत न करें, आगे चलें। और मैं तो मना तारीख कर रहा हूँ अच्छा, शरारत, आप पढ़ तुम लें, ऐसे अकल के आपका भी अंधे हो। देख लेते हैं आज आपकी तिलावत भी, जो आप इतने सारे उनके चमचे बन के बैठे हुए हैं, तो हम भी देखें कि तारीख जवान साहब की क्या इसको छोड़े, जवान साहब इसको पढ़ के छोड़े सुना दो ना, जिसको जो मिर्जा मसूद के में तुम जो खास किताब शिगिर्द चल हो, रही है पढ़ के सुना दो तुम। मिर्जा अच्छा, मसूद यार, जैसी ओ, तिलावत अभी करके तुम सुना दो। आधी आयत पढ़ी, अगली आधी तो सुन लेने दो, सबर साइड पढ़ के। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, इन पढ़ के वहा। ये एक जुमला है ना पूरा, सुम्मा फिर जब, जाअकुम आए वो रसूल, रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जब वो रसूल तस्दीक करते हुए आए तो क्या करना है आगे, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरना, ये अलग जुमला है इकट्ठा ही, लेकिन एक बात जहां मुकम्मल हो जाती है ना तो आप उस पर उसको कम से कम मुकम्मल पढ़ें। अगर एक एक हरफ करके पढ़ेंगे जिस तरह आपके खलीफा साहब खुतबे में पढ़ते हैं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना, क्या फर्क पड़ता है इसकी, हम हमको हमारी कोई लैंग्वेज तो नहीं है ना। नहीं पता क्या है, ये जो कुरान का जो है ना, वो उसका रब्त टूट जाता है ना कलाम का। अगर एक एक लफ्ज करके इस तरह पढ़े ना भाई, रब्त टूट जाता है कलाम का। जिस तरह मैं आपके साथ एक फिक्रे में बात कर रहा हूं, यही फिक्रा जो मैंने बोला है, अगर मैं यूं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कौन सी जुबान है, हम तर्जुमा पढ़ लेंगे। हाँ बेहतर ये है आप खलीफा साहब को भी कहीं तर्जमा पढ़ लिया करें। वो आप खलीफा साहब से खुद बात कर लें, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप खुद बात कर लिया करें खलीफा साहब ये से। लड़ाई मैं वाली आपको बात कर बताता रहे हैं आप, ये बात गलत है। ये देखिए मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ, कुरान के अदब की बात कर रहा हूँ कि कुरान को इस तरह पढ़ना, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, ऐसे पढ़ते हैं आपके खलीफा साहब, ये गलत है, ऐसे पढ़ना चाहिए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। मैंने खलीफा बना लो यार। अब ये जो ये जो बिस्मिल्लाह, इतने आगे ये चले जो जी। एंड पे आपने किया मैंने शाहिदीन, हाँ यही मैं आपको असल इतना में लंबा किया है, इतना लंबा किया है। अगर आप कारी आपके सामने बैठे हो ना तो वो आपको बता दें, आपने वो दूसरा, हाँ आपने ज्यादा लंबा किया है। हाँ ऐसे उसके ऊपर करते हैं, जहां पर आयत खत्म होती है ना सबर सैद साहब, जहां आयत खत्म होती है ना उसको इसको लंबा करके छोड़ते हैं। हाँ लंबा करके छोड़ते हैं। मैंने और भी लंबा, काला फशादू को भी मैंने लंबा किया। क्यों किया है? क्योंकि उसके आगे अलिफ है, पता है आपको। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, ऐसे पढ़ते हैं।
یہ جو آپ کے خلیفہ صاحب پڑھتے ہیں کالا فشدو وانا وہ رہنے معکم، دے، وہ ہمیں پتہ ہے، وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ بہترین پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یار قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے نا، اللہ کے وہ آپ کلام کو کی۔ لگتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اگر کسی کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہو تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لکنت نہیں ہے نا، لکنت ہو تو وہ تو اور بات ہے نا، جس طرح کسی بندے کی زبان میں لکنت ہو وہ تو ایک جینون مسئلہ ہی ہے۔ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ ہم آپس کی بات کریں، کیونکہ آپ ہماری جو باؤنڈری ہے نا اسے بیانڈ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ فائدہ نہیں ہے۔ یار آپ نے جو قرآن پڑھا آپ نے بھی غلط پڑھا، میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ قرآن کا ایک خاص بلکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو سوار سوار کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لو گالی مک گئی۔ پھر تو سنیے آپ میں کبھی سے کوئی بھی نہیں ہے بھائی، پھر تو کوئی بھی نہیں ہے آپ میں سے، آپ کو دنیا میں کوئی 1000 بندے ہیں، باقی تو پھر کوئی بھی نہیں ہے اجمیوں میں سے۔ قرآن کو سوار سوار کے پڑھنا چاہیے۔ بھائی جان پھر تو نکھار اسلام صرف نکھار عربیوں کا مذہب ہونا چاہیے، پھر تو اور لوگوں کا حق ہی نہیں اسلام کے اوپر۔ اگر اتنی عربی زبان کو ہی آپ نے امپورٹنس دینی ہے، اجمی آدمی کبھی بھی نہیں بول سکتا اس طرح جس طرح عربی بولے گا، کیونکہ وہ اہل زبان ہے۔ اجمی اپنے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، اردو سکھاتے ہیں، فارسی سکھاتے ہیں، پشتو سکھاتے ہیں، عربی نہیں سکھا سکتے، موت پڑتی ہے۔ اور بھائی جان جتنا مرضی سکھا لیں، اہل زبان جیسا لہجہ نہیں آپ لا سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ بھائی جتنی مرضی اچھی اردو وہ بول ہم لیں، سے آپ کا پنجابی واٹر بھائی، لہجہ بیچ میں واٹر جھلکے گا، بھائی میں آپ کو مزیدار کی بات سناؤں، عمر صاحب، پٹھان کا لہجہ عمر اس میں صاحب، جھلکے گا، عمر سندھی صاحب کا میں نے لہجہ قرآن میں، جھلکے گا، بلوچ عمر کا صاحب میں لہجہ نے قرآن جھلکے وہ گا۔ میں نے تو قرآن اتنے سے مجید تو کوئی کھولا ہوا فرق ہے۔ نہیں پڑتا نا۔ نہیں عمر صاحب ایک سیکنڈ ذرا، کیوں میں نہیں نے قرآن پڑتا؟ مجید پھر کھولا ہوا ہے۔ بننا ہے تو پھر پورے واٹر بنو، بھائی، واٹر نہیں تو بھائی میں کو بچوں مزے کی کی بات غلطی بھی سناؤں، نہیں ہوتا۔ واٹر بھائی ایک سیکنڈ ذرا، عمر صاحب میں نے قرآن مجید کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک میرا دوست ہے، وہ کام کرتا تھا میرے ساتھ، عربی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے یہ بات کہی، میں وہ ورڈ اس کی بتا رہا ہوں، کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے زبردست پڑھتے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ یہ بگاڑ کے کیوں پڑھتے ہیں، وہ اس نے وہ بگاڑ کے پڑھا، اعوذ باللہ، ایسے اس نے کر کے مجھے بتایا، تو میں نے کہا تم پڑھو، تو کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر اس نے مجھے پتا کہ آگے سے ایگزامپل دی، اس کی ایگزامپل ایسی جیسے میں کہتا ہوں کہ یو آر اے گڈ گائے، تو آپ اس کو پڑھو یو آر اے گڈ گائے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو کہنا چاہیے یو آر اے گڈ گائے۔ مجھے یہ عربی نے یہ ایگزامپل دی، اور اس نے ہمارا تو قرآن مجید سنا نہیں تھا، آپ کے ہی جو علماء ہیں ان کی وہ سن کے، تو اس نے مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہ آپ لوگ جو اس طرح کرتے ہو نا، یہ کھلواڑ کرتے ہو قرآن کے ساتھ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ سننا تو یہ ہے جی بھائی ہمارا۔ ہاں یہ ہمارا بھی سن لے، پھر سنے ذرا، پھر جگہ سننا ہی ہے آپ نے تو، نہیں اپنا آپ خود پڑھ کے دکھائیں نا اس طرح۔ یہ بھی تو ہمارا احمدی ہوئی ہے نا، نہیں نہیں احمدی نہیں ہے یہ، یہ احمدی مشاری ہے۔ کی بات ہے، مشاری کی۔ جھوٹ او بول رہے ہیں بھائی آپ میں احمدی۔ اپنی ویب سائٹ سے سنا رہا ہوں۔ وہ ویب سائٹ پر ہمارا رکھا ہوا ہے مسلمان کا وہ نہیں بھائی، یہ عربی ہے، احمدی خبر ہے۔ سائٹ، میں جانتا ہوں اس بندے کو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، یہ قادیانی نہیں ہے بندہ۔ او بھائی کیا بات کر رہے شرط لگاتے ہیں، اس پہ شرط ہیں، لگا رہے ہیں۔ جماعت بلا اس کی بات لگا سکتی تھی بھلا، کیا بات اور کر رہے ہیں؟ جماعت، او بھائی جماعت کے پاس اپنا ہے ہی نہیں نا کوئی قاری، کیا کرے وہ جماعت بیچاری۔ جانے دے یار، خدا کا خوف ہے۔ بھائی جان ہمارے عربی ملکوں میں پوری جماعتیں ہیں، اللہ کے بندے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قاری، ہماری اگر یہ قاری فلسطین میں مسجد ہے۔ اور ٹھہر جو آپ بھائی جان کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ عربی قاری جو جج ہے کیا اس پورا ہمارا ایم ٹی اے پہ، ایم ٹی اے عربی ہے، صبر سائد چینل صاحب، پورا۔ یہ دکھانا اس جی کا جی، نام ذرا کھول کے، میں اس کا نام نہیں میرے ذہن میں، لیکن یہ قاری مسلمان ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مشاری ہے، قادیانی ہے۔ او نہیں ہو بھائی، مشاری بھائی بھائی آپ آپ جھوٹ کبھی بول بھی رہے نہیں ہیں، ہمیں پہلے لگا آپ سکتے، سوال ہی تصدیق نہیں کر پیدا لیں۔ تھا۔ اگر یہ یہ فلسطین کا، قادیانی ہوا، یہ گل فلسطین سنو کا ہے، گل سنو یہ گل سنو فلسطین کا لڑکا ہے یار۔ پھر یار جوا کھیلنے فلسطین لگ کا، پیا، اوے نہیں ہے پھر فلسطین کا، جوا، پہلی کی بات۔ پھر جوا۔ دوبارہ پلے کرنا، ذرا دوبارہ پلے کرنا صبر سائڈ۔ اس کا ایکسنٹ بھی بتا رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ عربی ہے۔ وہ تو مجھے پاکستانی، تو میں نے نہیں کہا کہ یہ پاکستانی ہے،
मगर नहीं है लेकिन वो लामा साहब, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जमात कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। ओ भाई ये जमात का बंदा हुआ, मैं जुर्माना दूंगा, ठीक है। ये एमटीए के ऊपर भी आप पड़ता है। आप ओ भाई आप ऐसी एमटीए बात वालों कर के रहे हैं पास अपना जब नहीं है तो उन्होंने मुसलमानों को ही लगाना था ना। यार, क्या बात करते हैं हमारे फिर वही गल, हर दुनिया के हमारे हर मैंने अब, मेरी और बात सबर सुनिए साइड, आप, अब बात सबर सुन साइड, लें। मेरी जी जी बात सुने, मैंने ये बात अब रिकॉर्ड कर ली, मैंने आपसे दोबारा इसीलिए ये प्ले ठीक करवाया। है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने महफूज कर, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका निकाल के, मेरे मेरे भी अब मेरी मोबाइल बात में सुन लें, अब कम मेरी से कम बात सुन लें, अब छोटी सी मेरी बात 35-40 सुनिए। हैं। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमारे हिफ्ज स्कूल हैं, ठीक है। वहां से जो बच्चे इधर आके तरावियां पढ़ाते हैं, उनकी कभी अब आपने क्रास सुने, आप हैरान हो जाएंगे। नहीं पढ़ नहीं सकते ना वो, अगर और पढ़ यार सकते होते हिफ्ज तो, कुरान क्या बात कर रहे हैं यार यार। पढ़ सकते होते तो वेबसाइट पर उनका रखते ना। ओ नहीं भाई, आप तो भाई नहीं गलतफहमी जुबान हो पे रही है। चढ़ता, आप लोगों की ओ जुबान नहीं पे। यार, चलो इसमें अच्छा फायदा नहीं है बहस करने का, मुझे पता है ये अहमदी है और ये अभी मैं मुझे आ गई मजाक आवाज कर उनकी। जुबान पे उर्दू नहीं चढ़ती। ये क्या हो गया, निशान हो गया, क्या हुआ? लो जी मैंने निकलवा लिया, एक सेकंड जरा होल्ड रखें। Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto allaccia alla libertà, anche per gatti. Ecco l'aspirapolvere portatile che ho trovato su Salve, Temu. È vede, piccolo ma Michele, davvero eh. potente, utilissimo per rimuovere lo sporco. كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم अपनी आवाज का फर्क है। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير लो जी, कारी मिशारी है इसका नाम। देखे उसकी आवाज का मिश्री उसका बड़ा मिश्री फर्क है, उसका आवाज मिश्री का मिश्री एक उसकी सेकंड आवाज का ठहरो, फर्क है। आपने जो पढ़ी है ना मैं वही निकाल के देने लगा, कारी मिश्री की सूरह आल इमरान की मैं वही निकाल के देता हूं। एक सेकंड होल्ड रखें। वो अमर भाई निकाल रहे हैं उससे उतनी देर तक ना मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो सबर साइड साहब जो है ना, ये साइड पे हो गए जो सबर करते हैं, इन्होंने वो खद्दर साहब आए, उनके बारे में भी इन्होंने कहा मैं तो इसको जानता हूँ, इसको मैंने खुद देखा हुआ है, ये वहां पे घूमता होता है सड़कों पे, ये तो अहमदी कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं ये तो। और वो हुसैनी साहब ने कहा यार अकल नु हाथ मारे, समीउल्लाह प्रोफेसर समीउल्लाह दा भतीजा ही। अच्छा जी, ये मैं जो उनको जानता हूँ, वो कभी मस्जिद नहीं आए, मुझे अच्छा भाई पता सुने नहीं, भाई, और मेरे शहर में रहते हैं। सुने भाई, जो सारा आपने पूरा आयत, शहर जानता है, गोरे भी जानते हैं उसको, क्योंकि वो सबर साइड साहब, सेम ड्रेस लेके घूमते हैं, वो सेम ड्रेस सबर साइड साहब, ये सुने जो आपने आयत हमें सुनाई है ना, उसका नाम कादर है। सुने जरा, सुने सुने सुने, सही है। अब सबर फिर सुनाओ यार, फर्क है, बहुत फर्क दोबारा है। सुने, दोबारा वो आयत सुनाए सूरह आल इमरान की। सुनाओ जरा दोबारा। हाँ जी, टीएमएस सब अपनी पाए रिक्वेस्ट, वो नजर नहीं आ रही। सबर साहब जरा सुनाएं दोबारा से। आयत में साकुन नबीयन दोबारा प्ले करो अपने मोबाइल से। वही कर लगा। चलो ये जनाब अब देख 1976 लें में, कि वो नीचे से भी आपके दोस्त बहन एक लिख रही है कि वाद में फर्क है। हाँ हाँ बताता हूँ मैं आवाज में फर्क निकाल के। अच्छा एक ये सेकंड टीएमएस साहब ऊपर आए, टीएमएस साहब डाल रहे थे वो, एक ये सेकंड 5 सितंबर
5 सितंबर 1976 को कुवैत में पैदा हुए और इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से वो डिग्री ली है और ये अभी तक एक्टिव है। ठीक है जी, ये है इनका मिशरी बिन टीएमएस साहब रशीद कुछ टीएमएस अल साहब अफसर। आया कुछ बताना चाह रहे थे। टीएमएस भाई अस्सलाम वालेकुम। टीएमएस भाई अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम टीएम सलाम। भाई नहीं जो सर सर एमटीए पे जो मैंने अभी ये सुनाई है जी आवाज, जी, वो अपने आपको कुछ आइडिया? अपने एमडी हैं, एमडी अपने है वो, एमडी मैंने हैं। सुनी है हाँ हाँ, अपने एमडी हैं। एक बात, और दूसरी बात, वो ये अमर साहब आपको वो कर रहे थे कि चलो तिलावत करते हैं, तो अमर साहब तिलावतकारी ना लें, एक दफा बाद आप में करते हैं। पहले पहले एक मिनट, ये जिनकी एक मिनट तिलावत नहीं। लगी, ये कौन है बंदा? एमडी हैं, क्या नाम है एमडी इनका? क्या नाम है इनका? एमडी हैं, आपके लिए इतना काफी है। भाई नाम बताएं अभी ना। तिलावत ना ये कर लें, MD है, अभी अब तिलावत सब कर आपकी मैं लेते हैं। गारंटी ओ भाई देता नाम हूँ, बताएं तिलावत एमडी तिलावत हैं, बाद- एमडी हैं, आगे नाम चलें, क्या अभी है? तिलावत ना कर लें, और नाम अभी क्या है तिलावत ना इसका? कर लें, भाई एक नाम आप अभी बताएं। तिलावत कर लें। अमर भाई आप छोड़े उसकी, छोड़े जरा। आप गलत अब बयानी कर रहे हैं, नाम बताएं इनका। चलो छोड़े, आप- अब टीएमएस साहब आ गए हैं ना, अब करें तिलावत। एक चलें एक आप- तिलावत तिलावत करें, बिस्मिल्लाह करें, मैं सुन रहा हूँ। ओ यार तिलावत करें, बिस्मिल्लाह, मैं सुन रहा हूँ। पहले ये जो आप गलत बयानी कर रहे हैं, इस बंदे का बताएं, ये बंदा कौन है? चलो छोड़े यार, उस रहने दो, नहीं नहीं, उसको छोड़े रहने दो, क्यों? ये भी छोड़े है। क्यों? मुझे ये पता है कारी वो साहब, MD है, मैं आपको बता रहा ये हूँ, मुसलमान MD कारी, ये मुसलमान कारी है, MD कुवैत के हैं, कभी भी नहीं डालेंगे 49 ईयर्स के हैं। आपने झूठ बोला है और ऊपर से दूसरा भाई भी आके झूठ बोल रहा है, क्यों? ओ यार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क क्यों नहीं अच्छा पढ़ पड़ता? रहा है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? मुसलमान को कादियानी कह रहे हो? ओ अल्लाह, सबर साहब अल्लाह भाई, के बंदे, सबर ये साहब MD है, भाई, मैं आपको नाम किधर ले से दूंगा। दिखाएं ना मैं मुझे, आपको उसकी बता रहा फोटो हूँ। दिखाएं, प्ले करके दिखाएं सबर उसकी। साहब भाई, मैं आपकी सबर बात साहब करवा भाई, दूंगा, किधर से आप- बात कैमरा करवा ऑन दूंगा। करके दिखाएं, नाम मैं बताएं बात उस बंदे का। करवाऊंगा। सबर मैं साहब अमर भाई, साहब, ये जिधर मैं से आपकी आपने बात प्ले करवा किया दूंगा। ना, भाई मुझे उस पीछे बंदे का करें। नाम बताएं जिसका नाम आप कह रहे हैं कि ये अहमदी है, नाम बताएं इसका। अभी तिलावत कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? फिलहाल करें जो जी। जो काम का है वो करके दिखाएं। लामा साहब, ये अच्छा, तो मुझे छोटी सी बताएं बात जी, है, मैं चलो अभी तिलावत तिलावत ना कर लें। कर लेते मैं हैं, ये सबर साहब साइड आए हैं ऊपर। दसो जी यार, उनको छोड़े, मैं कह रहा हूं दिखाएं ना, मैं वीडियो इधर YouTube पे अभी दिखा देता तिलावत ना हूं। यहाँ कर पे लें। कोई मुगल चौधरी साहब कुश्ती नहीं हो रही, वो अभी मुकाबला थोड़ी नहीं देर हो रहा। पहले, अभी थोड़ी एक नहीं एक इशू के वो मुतालिक बात challenge हो कर रही दो रहे है। बंदों ने थे। झूठ बोल दिया और वो चैलेंज कर रहे थे, कोई झूठ दो- नहीं बोला, दो कोई बंदों ने झूठ नहीं बोला है और कोई इस झूठ नहीं बोला। नहीं आप बोला तो झूठ नाम बोल बताओ रहे हैं। उसका। झूठ नहीं आप बोला। झूठ बोल रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नाम बताओ। आप नाम झूठ बताओ। बोल रहे हैं, तो आप नाम बता दें। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड। मैं बताने लगा हूँ नाम। एक सेकंड होल्ड। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें भाई, मैं नाम बताऊँ उनका। मैं नाम बताऊँ, बड़ी स्क्रीन पे करें जरा। एक तो झूठ बोलते हैं, ऊपर से कहते हैं। भाई बड़ी स्क्रीन पे करें। किदा कर रहा सईद है? साहब नए नए हैं, उनको मेहनत करना नहीं आता। और बड़ी स्क्रीन पे करो। सबर साइड खुद मॉडरेटर है, बड़ी स्क्रीन पे करो। सबर साइड, नहीं ना सबर साइड करना बड़ी स्क्रीन पे करो। सबर साइड साहब, लुकमान साई साहब मौजूद हो? करने लगा हूँ, एक सेकंड जरा। हाँ जी, हाँ जी, की होया? मैं नज़ीर भाई दी स्क्रीन वड्डी करो ना यार। स्क्रीन वड्डी करो मेरी। ये हैं जी वो कारी, और कुवैत बताता से हूँ, मुझे पता है, मगर मैं ये अरबियों के और सारे के तकरीबन एक्सेंट एक ही होते हैं। ये मैं ये ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, ये नाम लिखा हुआ है। आप उसका नाम बताएं जो आपने प्ले किया, उसका क्या नाम है, दिखाएं जरा। मैं वही ढूंढ नंबर साइड आप भी कैमरा खोल के बता दो यार, आप भी कैमरा खोल के दिखा दो, गल मुकाइए, खोलो कैमरा। चलो जितनी देर वो कैमरा खोलते तिलावत ना कर लें। तो कर लेते हैं तिलावत आपकी, वेख लेते हैं तिलावत आपकी। सब नहीं, आपकी भी वेख लेते हैं ना, वेख लेते हैं। फिलहाल जो आपने झूठ बोला है, पहले उसका तो क्लियर हो जाए ना। मैंने झूठ बोला ही नहीं। उर्दू तो ठीक बोलते नहीं है, वेख लेते हैं। आपने आकर उस झूठ में जो उन्होंने बोला, आपने उसमें आके इजाफा किया और कहा कि हाँ हाँ ये अहमदी है। रिकॉर्डिंग हो रही है सारी। जिस तरह सुबह से लेकर रात तक आप इजाफे करते हैं ना झूठ में, अभी इसी पता तरह चल मेरा वो जाता है, भी अभी इजाफा है। पता चल जाता है। अब हौसला अभी रखिए। पता चल जाता है। इसी आपने तरह क्यों झूठ मैं बोला? इसे मैंने झूठ नहीं बोला, आपने बोला झूठ। अगर मैं आप किसी आपने की झूठ नहीं पिक्चर बोला, लगा के, तो आपने सबूत झूठ दे नहीं उसके बोला। अहमदी होने का, उस आप बंदे का सबूत नाम बताएं। दें, आप सबूत दें। मैं कह रहा हूं, मैंने तो सामने आप फोटो लगाई सबूत हुई है। दें। ओ भाई मैंने तो
आपको आपके पास क्या सबूत है कि इस बंदे ने वो जो सबर साइड ने तिलावत लगाई है इस बंदे ने की है? हाँ, ये यही बंदा है ना। सुने सुने, मैं प्ले क्या करता हूँ, सबूत है? मैं बताता हूँ। मैं सुन चुका ये हूँ सुने, ये हैं जी। जी सर। एक मिनट, बंद करें। सबर साइड भाई आप चलाएं, सबर साइड भाई आप चलाएं, आप चलाएं हमें भाई। पता चल जाता है वो हो रहे। चलाता हूँ अभी चला। हो 81 चलाई थी। हाँ जी, हाँ जी, सूरह आल इमरान की 81 प्ले करें। सबर आपने कौन सा कुरान पाक सिलेक्ट किया हुआ है अल इस्लाम से? अल इस्लाम से जाएंगे तो वो एक ही है। नहीं, इसमें बड़ा खास फर्क है, अरबियों की टून सेम होती है मगर वो अच्छा, जिसकी आपने ये जिसकी तिलावत आपने प्ले की हुई है, इसका कोई नाम शाम नहीं लिखा हुआ उधर? वो लिखा हुआ है नाम कारी का। क्या नाम मुझे लिखा हुआ है? बताओ, मैं ढूंढ के देता हूँ, हाँ मुझे जी, हाँ बताओ। जी, मौलवी शहर अली। क्या? मौलवी शहर अली। ओ मौलवी शेर अली को ये तो नहीं है ना? मौलवी शेर अली तो फोत हो गया आपका, ये वो तो नहीं है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। दिखाएं, कैमरा तो ऑन करके दिखाएं, देख लेते हैं। ओ यार, आप जाएं वहाँ पे हमारे अल सलाम पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके तो वहाँ पे देखेंगे तो नीचे नाम लिखा हुआ है। कहाँ पर है? मुझे थोड़ा बताएं ना, लिंक तो बताएं। वहाँ जाए ना, अल सलाम पे जाएं और खोला हुआ ओपन मैंने, करें, खोला हुआ कुरान मैंने। ओपन करें, कुरान ही खोला हुआ है, कुरान ही खोला हुआ है। अच्छा, कुरान जब ओपन आपने किया ना तो आप कोई भी सूरत जो उसको क्लिक करें, नीचे नाम लिखा होगा। मैं कुरान तो यहाँ पर एक तो वो बड़ा मिर्जा ताहिर का कुरान में मेरी मोहम्मद साहब का, कौन सा कुरान खोलना? यार एक ही है, आप पता नहीं कौन सी, मैं तो एक नहीं है भाई, बहुत सारे कुरान है। बहुत सारे कुरान वेबसाइट पे पड़े हुए। शुरू से लेके चलो ना हमें सबर, बताओ शुरू अल से। सलाम पे जाएं, चले ठीक गए? है? हाँ, तो वहां पे जाके आपने कुरान को क्लिक करना है। कर दिया क्लिक, तो नीचे 4-5 कुरान शरीफ खुल गए हैं। सबसे ग्रीन वाला लेना है, काले वाला लेना है, रेड वाला लेना है, तफसीर सगीर लेनी है, क्या लेना है? जिसमें तफसीरें आती हैं अल सलाम तफसीर। से। यार तुम दोबारा से एक लॉगिन खोलो दूसरे मोबाइल पे, हमें साथ लेकर चलो। चलो यार जी, मैं कैमरा भी खोल के आपके दिखा दो यार, आसान हो जाएगा सबके लिए यार। बस साइड भाई कैमरा खोल के दिखा दे, क्यों इतना टाइम जाया कर रहे? 2 मिनट लगते हैं यार। वजह ना। अच्छा, अल सलाम पे जाएं, हाँ जी, यार चलेंगे। कैमरा चलाने चलेंगे। बैक अल सलाम पे कैमरा एक सेकंड यार, अभी तो इंटरप्ट ना करें प्लीज। अल सलाम पे गए तो आपने ना नीचे आ जाएगा होली कुरान लाइब्रेरी, ठीक है, अदान टाइमिंग, रीसेंट फ्राइडे सरमन, होली कुरान पे आपने क्लिक करना है। और नीचे जी वो कह रहे हैं ये है मिश्री राशिद अल फसाए, मिश्री राशिद अल फसाए। सवाल ही नहीं पता होता कि बंदा अहमदी ना हो तो उसका लगाया हो, सवाल ही नहीं पता होता। हमारे पास तो हाफिज भी हैं और क्या कहते हैं अरबी भी मेरी हैं। गुजारिश सुने, लुकमान सबर साहब, यहाँ से आपने प्ले किया हुआ ना? साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से प्ले किया हुआ ना? जी 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 तो इसमें ये लिखा हुआ मौलवी शेर अली, यही कह रहे हैं ना? जी जी यही कह रहे हैं ना? जी जी। ये जो मौलवी शेर अली है ना, ये उनका कुरान है। प्ले करने वाला, जो पढ़ने वाला, ये बंदा प्ले है। करने वाला कोई और है। अच्छा, आप माइंड हो सकता कि कॉल उठानी है, जरा एक सेकंड जरा। तो पढ़ने वाला गैर अब्दी निकल आया जी। पढ़ने वाला ये है, और जो तलावत जो कुरान है आपका लिखा हुआ तर्जमा वो मौलवी शेर अली का, ये ठीक है। लेकिन जो आपने आवाज हमें सुनाई है ना, वो इनकी है। ये यहीं से आपने प्ले किया। लो जी, माइंड रोस्टर साहब कॉल डालें, वो कॉल कह रहे हैं कि कॉल डालने का। उन्हें आके की कर लेना, उन्हें छुड़ा लेना इस काम तू। एक सेकंड जरा, एक सेकंड। उन्हें माइंड रोशन दसिया थल्ले कि मिश्री राशिद अल फसाए है एक जी, सेकंड उन्होंने यार, आपको एक दस पहले। सेकंड। वो तो कह रहे भी गलत, तुसी गलत गल कर रहे सबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबर साठ भाई, वो सही कह रहे ने, मिश्रे राशिद अल फासे अहमदी नहीं है, ये वाबी है
ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। नारे ਟੱਪਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? तकबीर, अल्लाह अकबर। ਇਹਦੇ ਬਸ ਸਭ ਸੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਓਕੇ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵਾਲੇ। ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਸ਼ਰੇ ਰਾਸ਼ਦ ਅਲਫਾਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਨ ਅਲ ਮਾਲਕੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। अस्सलाम वालेकुम। साहब बदले ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ना। नहीं वो मैं तो इसमें कौन सी मुंह काले वाली बात है। थे वो अहमदी है, वो अहमदी। हम कह रहे हैं नहीं यार वो मुसलमान है। नहीं नहीं जी अहमदी। क्यों आप जिद कर रहे थे? ओ मैंने क्यों थल्ले लाया जे सबर साइड। वो मैंने कहा कि वो आपस में ना मशीला कर वो ये थल्ले लाया जे मैं तो नारा तकबीर ही लाया ना। देखें उन्होंने बात की है कि वो अपना बेचते हैं, तो ये कोई भी वो अगली गल छाड़ दे, बेचते कौन है नहीं बेचते उसको 1 मिनट साइड पे रहने दे, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है ये आपकी वेबसाइट पर जो 1 मिनट तलावत करते हैं। आपकी वेबसाइट पर ये जो तलावत आपने प्ले की है, आपकी वेबसाइट पर हमारे मुसलमान कारी की तलावत है, ये बात ठीक है? हाँ उन्होंने कारी बाय मिश्री किया हुआ है, ये किया है, बाय किया हुआ है। ठीक है, कारी मिश्री कुवैती की ये तलावत है, ये उन्होंने बाय किया। भाई वाला भी चेक देख लेंगे। भाई वाला भी चेक देख लेंगे। ठीक हो गया। भाई वाला भी चेक देख लेंगे जो आपने बाई किया हुआ है। फिलहाल ये बताएं कि वो कुवैत के मुसलमान कारी हैं जिनकी तलावत आपने MTA पर रखी हुई, ये बात ठीक है? तो मुसलमान ही तलावत करेगा ना, गैर मुसलमान कौन करता है? मुसलमान नहीं, मुसलमान है ये। आप तो मुसलमान नहीं, हम तो मुसलमान, हमारे तो कारी साहब मुसलमान है। आप कहते हैं आपने अपने वेबसाइट पर मुसलमान कारी की तलावत रखी हुई है, वो आप कहते हैं ना। आगे चलें। बात ये ठीक निकली है। सबर साइड साहब, सबर साइड साहब, ये बात ठीक निकली है कि आपने मुसलमान कारी की तलावत रखी हुई है अपनी वेबसाइट पर। MTA पर मुसलमान कारी की तलावत पड़ी हुई है। अब ऐसा करते हैं कि आप मुकाबला कर लेते हैं अहमदी का और गैर अहमदी भाई जो फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ, चलो क्या करना है? आओ ना जरा, ये और सबर तो करो ना, साइड पर होकर थोड़ा सबर तो करो, साइड पर सबर करो। सबर साइड, अगर ये माइक लगाए इसको नीचे कराओ, ऐसे कराओ फौरन, माइक ना लगाने देना इसको। हेलो थल्ले लाओ इन्हें, थल्ले लाओ। वो तो पहले मीर प्यार से वो बात ਤੁਹਾਡਾ करें, ਵੱਡਾ प्यार ਭਰਾ से ਆਇਆ बात ਉਹਨੇ ਆ करें। ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, थल्ले लाओ, ਇਹਨੂੰ थल्ले लाओ। अब आयत आपने मैं एक बात की तस्दीक करूंगा, मैं एक बात की तस्दीक, मैंने तस्दीक करनी है। बात सुन ले, आगे चलें। ठीक हो गया। सबर ठीक हो साइड गया। साहब, अब एक बात जिस बात पर हमारी और यार, आपकी, मेरी बात सुने, एक यार आधे मुझे घंटे नहीं- से पिछले से लड़ाई हो रही है। चलो मैं इसको माफी क्लियर मांगता करें, हूं आपसे, कोई बात नहीं है, माफी चाहता हूँ। चलो आप एक आयत आप पढ़ इसको लें, क्लियर एक करें कि आयत अगले हो नहीं, गया कि वो माजरत की किसी नहीं, अहमदी की सब तलावत ठीक नहीं है। थी। मैं माजरत के लिए नहीं कह रहा आपको, बात तो सुने ना। मुसलमान को देखते हैं, जो मुसलमान मैं कहता हूँ आप तलावत उसकी कैसे करता तस्दीक, है। ओ भाई इसको तो चुप कराओ 1 मिनट। चलो ना, इसमें कोई बड़ी बात है यार। तो भाई ठहर, जो बड़ी बात है, आप बड़ी बात, आप दोनों ने कोई झूठ बड़ी बोला बात ना, नहीं है, आप दोनों ने बड़ी बात झूठ नहीं बोला, है। इसको माफी मंगवाओ, फिर माफी बड़ी मंगवानी, बात इसको नहीं को माफी है। मांगे, कोई बड़ी इसको बात टी नहीं अहमद है। को माफी मांगे, इसने झूठ बोला आके। पहले तुम माफी नहीं, मांगोगे। सबर साइड झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसको को माफी मांगे, आपने गवाही दी, क्या फायदा होगा बुच्ची झूठ खान बोलने साहब, कोई बात नहीं। सबर साइड आपने माफी मांगी, इसको को माफी मांगे, बुच्ची चिकन साहब आगे चले। इसको को माफी मांगे, टी अहमद को माफी मांगे। आपने भी बुच्ची चिकन साहब, ये इसने झूठ बोला आके, इसको को माफी मांगे। सबर साइड करते हैं, सबर साइड इसको माफी मंगानी कि नहीं यार? माजन में कौन सी बुराई है? अमर नजीर, पहले तुमने झूठ बोला, इसको माफी मंगाओ। टी अहमद को इसने झूठ बोला आके, इसने कहा ये अहमदी है। सबर साइड ये सबर साइड, जब तक इसने माफी नहीं मांगनी आगे बात नहीं होने देनी हमने। माइक लगाओ, कोई माइक नहीं लगाया हुआ। सबर साइड तो बेचारा माफी मांगे थे, आपने झूठ बोला आके, गवाही दी आके, झूठ बोले आके, कहते अहमदी है। कौन सी गवाही दी है? झूठ बोले तू, आपने कहा वो अहमदी है। गवाही दी है? आपने कहा वो अहमदी है। आपने आके कहा वो अहमदी है। आपने कहा अहमदी है। सुन बुच्चकन, अमर नजीर ने ऊपर चढ़ते साथ सबर साइड को कहा कि एक एक हरफ उसने गलत पढ़ा। जब उसने पहला हरफ पूछा कि बताओ इसमें क्या गलती है, तो चुप हो गया आगे से, कहता ठीक है। वो नहीं झूठ, वो माफी मांगे, उसको को माफी मांगे ऊपर चढ़ के। बातें सुन लो इनकी, माफी मंगाने निकले ये, उसको को माफी मांगे।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਡਰਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਪੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ लगाना, ਕੋਲੋਂ। माइक नहीं लगाना। ਤੂੰ मैं ਇੱਥੇ तेरे को ਮਾਫੀ नहीं ਮੰਗਣੀ, ਤੂੰ करनी ਝੂਠ है। ਬੋਲਿਆ ਹੈ। तू ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਤੂੰ ਝੂਠ क्यों बोलिया मिर्जाइया? तू ਇੱਥੇ माफी भाई, झूठ तू बोल- इल्जाम क्यों लाया? तू इल्जाम क्यों लाया? तू झूठ बोला। तुमने कुरान पे झूठ बोला है अमर नजीर, तुमने कुरान पे झूठ बोला। तुमने कहा कि सबर साहब ने गलत कुरान मजीद पढ़ा, उसकी माफी मांगो, मैं इसकी माफी मांगूंगा। ऊपर आओ, ऊपर आओ पहले। बड़ा आया देख। वो की रोला पा लिया यार, माफी शाफी मांग लो, क्या हो गया? आपसे बड़े हैं वो आमिर नजीर साहब। लकमान भाई उसको आप कहो आए वो इधर? उसको कहो वो माफी मांगे। उसको कहो वो माफी मांगे कि उसने सबर साइड पे इल्जाम लगाया था कि इसने एक एक कोई नहीं, लफ्ज मैं गलत पढ़ा नहीं है। मुकानी है, मैंने कोई बात नहीं। ठीक है, वो माफी मांगे, मैं माफी मांगूंगा। चलो बात है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है कोई माफिया मंगवाने की, उसको लेने की जरूरत ही साहब नहीं है। आप वहीं वहीं पे बैठे हुए थे जब वो बंदा वाली ऊपर बात चढ़ा, ही उसने नहीं। कहा मुगल साहब उसने पहले सबर साइड पे इल्जाम लगाया है कि सबर साइड ने कुरान मजीद गलत पढ़ा है, एक एक लफ्ज, जब एक एक लफ्ज सही पढ़ा था। दे प्रूफ, दे प्रूफ, दे प्रूफ, दे प्रूफ, दे। मैं भी माफी मांगूंगा, प्रूफ दे कि उसने गलत पढ़ा है। उसने लड़ाई बिल्कुल नहीं सही करनी पढ़ा, है। मुझे याद जुबानी याद है। हमने लड़ाई नहीं करनी यार, बात पता क्या है, ये उन्हें साहिब साहब पता नहीं कहाँ बराड़ लगा के चले गए हैं। साहिब साहब प्लीज़ आप इसको संभालें, हम कोई लड़ाई करने नहीं, या बराड़ इसलिए नहीं लगाई थी कि यहाँ पे कोई तमाशा लगाया जाए। लोग तो पता है ना, जब 104 तलावत की लोग बात हैं, आई, जब तमाशा। तलावत की बात आई तो झूठ में बहाना मार के भाग गया। लामा। कहता है जी गल लगे नहीं चलेगी ਜਦੋਂ तक मेरे नाल माफी नहीं मंगोगे। तू एडा माफिया मंगवाने वाला कौन है भाई? ये उसका जो चमचा ये बैठा हुआ है माफिया तारिक मंगवा चौहान, चुका देखो हुआ है। कैसे चुप करके बैठा हुआ है। हाँ भाई तारिक चौहान माफी मंगवानी है, खोल माइक। अब तारिक चौहान देखना अब कैसे चुप करके गिद्दड़ बन के बैठा हुआ है। बड़ा आया तो ऊपर आया, मैं उस वक्त ऊपर आना चाहता था, मैं सर, इसलिए बात नहीं आया ये है- क्योंकि उससे पहले खराफात शुरू कर ली थी। हाँ जी, आप बात सही कह रहे हैं। बात दरअसल ये है एक एक कि लफ्ज, एक एक सबर साहब भाई ने बिल्कुल बिल्कुल ठीक पड़ा है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी वो रेल नहीं निकली जा रही है। और हमारी जमात ने सारा डेटा डिस्क्लोज किया हुआ है, कारी का नाम भी लिखा हुआ है, मुतरजिम का नाम भी लिखा हुआ है, कुरान पाक का नाम भी लिखा हुआ है। तो कहता जी ओए तू साडे मुसलमान दी तलावत लाई है, ओ भाई असी रसूलुल्लाह दे कुरान शरीफ रखे ने, हमारी वेबसाइट है ही कुरान शरीफ के मुतल्लिक। ये वाटर साहब वो खरीद के लिखा हुआ है, ये इनको जाके अपने मुसलमान कारी को पकड़ना चाहिए कि तुमने काफरू को पढ़ के कुरान मजीद बेच दिया, पैसे लेते हो। और सर ये कातिल लोग हैं, उस बेचारे की जिंदगी भी खतरे में डालेंगे। ये कातिल लोग हैं, इनका क्या है? ये तो कातिल है। इन्होंने तो इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो इमाम हसन को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो खलीफे नहीं छोड़े। ये तो कातिल हैं। ये अपने कारी बेचारे को क्या छोड़ेंगे? और सबर साहब भाई मुझे मौका नहीं मिला पहले आपसे बात करने का। मेरी आवाज आ रही है सबर साहब भाई? हाँ जी आ रही है। आ रही है। उस दिन के लिए मैंने किसी और को भी आई थिंक पैगाम दिया था, अगर आप मेरे पास होते तो वाकई में आपका कंधा थपथपाता। क्यों? जो आपने उस दिन इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने कसीर रहमुल्लाह की किताब तफसीर पढ़ी थी ना, और इस बंदे ने हाफिज इब्ने कसीर रहमुल्लाह को किन लफ्जों से याद किया था। बाद में जब इनको बताया तो वो बेशक वीडियो निकाल के देख लेना, ठीक 20 सेकंड के लिए दोनों को, इसको भी और सैनी साहब को भी सांप सूंघ गया था, क्योंकि दोनों पहले मुकर चुके थे। इसने तो बहुत गलत लफ्ज यूज किया था उनके लिए। ये अपने उलमा के साथ ये करते हैं। यहाँ पे आया माफिया मंगवाने।
एजेंट साहब आप बड़े चुप करके बैठे हुए हैं, अब नहीं बोल रहे एजेंट साहब। एजेंट जनरल जो ऊपर से जंबा बना हुआ है, बीच में से ये पक्का जो है हुंडा है। छोटी छोटी बातों को यार इतना सीरियस हो जाते हैं और इतना सीरियस ले जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतना सीरियस छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या जरूरत होती है। अब्दुल भाई, हाँ जी सबर साइड साहब, आज आप लोगों का असल चेहरा सामने आया, बहुत ज्यादा जलील हुए यार। आज तो आप लोगों ने मिर्जा साहब को भी जलील करवा दिया। क्या जलील होने वाली बात है, जरा हमें भी बताते जाए। कर देंगे अगर आपने ऐसे करना है तो। आप अब कोई सवाल है तो कर लें, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। जी भाई बता दें जरा किस बात पर जलील हुए हैं, 1 मिनट जरा क्लियर कर दें। जो आपने झूठ बोला कि वो कारी जो है वो कादियानी है और वो मुसलमान। भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर झूठ लिखा हुआ है। तुम्हारी वेबसाइट पर मुसलमान का कुरान पाक आपने रखा हुआ है। तो मुसलमान का कुरान पाक है कि रसूलुल्लाह का कुरान पाक है? अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, मुसलमान का कुरान पाक है कि रसूलुल्लाह का कुरान पाक है? हमेशा की तरह अब्दुल भाई, मुसलमानों ने अपना कुरान पाक लिखा हुआ हमेशा है। की तरह आपका मुंह। अब्दुल भाई जाके उस मुसलमान से पूछें कि उसने कुरान मजीद पढ़ के तो एनजीओ को बेचा क्यों है। देखिए टी अहमद, जब वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्ट और राइट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है तो इसमें कौन सी गलत बात है? कोई मसला नहीं। या तो हमने अपने किसी बंदे का नाम सबर साइड लिखा हो वहां तलावत में, ऐसा तो नहीं है। जहां पे कारी आशिक साहब है वहां पे कारी आशिक लिखा हुआ बातों है। के ऊपर भी इतराज है यार, मुझे समझ नहीं आती कि हर एक चीज पे इतराज है। हर एक किसी को कोई अच्छी चीज हो तो उसमें भी सबर साइड भाई, पास क्यों है? सबर साइड भाई, आपने ही इनका नाम लिया था कि इन्होंने नहीं पढ़ी, कि उसने कहा था कि इसने पढ़ी है। समझ नहीं आ रहा कि ये कुरान पाक जो है सिर्फ अपने तक महदूद कैसे कर रहे हैं। झूठ तो आप ये कहें कि इसने पढ़ी है और उसने ना पढ़ी हो। आपने तो नाम लिया ही नहीं, इसने निकाल के बताया है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो माइंड डॉक्टर साहब ने आके हमें बता दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो बात जो सही है वो सही है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या नाम है, ये जो राइट हैं ये हमने बाय किए हुए हैं वो, और वो राइट सेल करते हैं, सेल टू एनीवन। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तो बिल्कुल ठीक है यार, वो किरत करते हैं, उनका मतलब के प्रोफेशन है, तो वो उन्होंने इसके लिए मेहनत की है और 30 के 30 पारे रिकॉर्ड करवाए हैं, इतनी मेहनत की है, तो वो इसका हक रखते हैं जिसको कॉपीराइट एक्ट के तहत कि वो जिसको चाहें दें इसके राइट्स। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे प्यारे प्यारे मिठे मिठे मदनी भाइयों की हाल जे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बात यह है कि मैं तो अभी एंटर हुआ हूँ, देखा मैंने कि गुफ्तगू हो रही है राइट्स की। ये हमारी नज़में अपने जलासों पे जलसों पे चलाते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़में पढ़ते हैं और राइट्स भी नहीं खरीदे हुए इन्होंने। हमने तो कभी इतराज़ नहीं किया, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा करते हैं आप लोग ये करते हो तो। बिल्कुल, क्यों नहीं जी। अब ये कारी साहब ने अपने राइट इंटरनेशनल वेबसाइट्स को भी बेचे हुए हो तो ही हैज फुल राइट्स कि वो जिसको मर्जी दें अपने राइट्स। वो लाइब्रेरीज को अपने राइट दें, ई लाइब्रेरीज को अपने राइट दें, वो जनाब इंटरनेशनल मतलब कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अपने राइट्स बेचें, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने हमें ये इशू ही नहीं था कि वहां क्यों लगाई हुई, इशू ये था कि ये कहा जाए कि जी ये जमात अहमदिया का एक आदमी है, उसकी है। ये हमने रिसर्च की, हमने इनकार कर दिया, हमने रिसर्च की। हाँ तो बस इतनी सी बात है, इनकार कर दिया। तो पहले आप कह रहे थे नहीं उन्हीं की है, उन्हीं की है, नहीं आपको पता चला कि गलत बात थी। कर ली है उसने। ये बात नहीं है कि क्यों लगाई, ये इशू है ही नहीं। वो बेशक आप बात आ रही है आपको। खलीफतुल मसीह राबे की जो नज़में हैं वो भी चोरी करके लोग पढ़ते हैं,
कभी किसी को कुछ नहीं कहा आपने। बात व्हाट्सएप आवाज आ रही है ना आपको? भाई आ रही है। बात यह है कि सबर साइड ने तो किसी गलतफहमी की वजह से, हालांकि उनको इतनी ज़्यादा मुसर भी नहीं होना चाहिए था इस चीज़ पे कि नहीं जी वो एक अहमदी की आवाज़ है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गलती जो टी अहमद साहब ने की कि आते ही आओ देखा न ताओ, बगैर अहमद साहब ने क्या की? बगैर किसी वजह के मुर्तजा अवान साहब आपने गलत गवाही दी। क्या की? क्या कौन सी गवाही दी मैंने? आपने टी अहमद साहब गलत गवाही दी है इस बात क्या की। गवाही दी मैंने? टी अहमद ने मेरे साथ बैठ के कुरान पाक खोल आपने लिया था। बगैर सोचे समझे मिनट, कह एक दिया, एक आपने मिनट। बगैर सोचे समझे ये बात कह दी कि हाँ जी क्या बिल्कुल कह अहमदी दी? की आवाज है, अहमदी कारी है, अहमदी कारी है। तो सबर साइड को तो हो सकता है गलतफहमी हो, लेकिन बड़ी जी, गलती जी। और झूठ जो बोला वो आपने बोला टी अहमद साहब। तो वो जो अमर ये ज्यादती है। नजीर ने, एक मिनट, और वो जो अवान साहब, अमर नजीर ने ऊपर चढ़ते साथ ये बात कही थी। अवान साहब, अवान साहेब, अहमद उनकी सवारी आ गई है। सवारी आ गई है। किसकी सवारी आ गई? सही साहब आपको सबर साइड ढूंढ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है आपसे। नहीं नहीं, मैं आजकल बेड पे ही हूँ, मेरा मैंने ऑपरेशन करवा लिया ना उस चीज का। हाँ जी साबर भाई। कर रहे थे तो आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। हाँ, मैं जरा किचन तक गया था। हाँ जी। काफी ज्यादा लोग आ गए थे, तो वो एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं आपको बुला रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जिसको लेना ले ले, मैं तो साइड पे था। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग में इतना जोर, ये होता है क्या चक्कर है। असल में बात यह है कि ये लोग इस टो में रहते हैं कि कहीं छोटी सी भी गलती हो पकड़ के हम ना उसका, वो कहते हैं ना, वो राई का पहाड़ बना दें। ये राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं बेचारे। सुभान भाई हुआ पता है क्या था? ये बंदा पहले ऊपर चढ़ा, इसने कहा जी कि सबर साइड साहब ने तिलावत एक लफ्ज गलत पढ़ा है। ठीक है, मोदी जी म्यूट लगा लो। सबर साइड साहब चुप कर रहे। जब उसने 3-4 दफा ये बात कही है तो सबर साइड साहब ने कहा चलो मैं पढ़ता हूँ, मुझे गलतियां निकालना। अब लफ्ज का ये मतलब होता है कि पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक गलत पढ़ा है सबर साइड ने। सबर साइड साहब ने पहले 2 लफ्ज पढ़े और पूछा कि इनमें कोई गलती, कहता ये ठीक। वहीं पे सबर साइड साहब को पकड़ लेना चाहिए था कि भाई ये ठीक है तो फिर तुम झूठे। फिर इसने ये लगा लिया कि ये तिलावत किसी और की नहीं, इसने ये लगा लिया। जब उससे बात छुटी, मैं ऊपर चढ़ा, मैंने कहा चलो तिलावत कर लेते हैं, क्योंकि ये चैलेंज कर रहा था कि तिलावत करो। मैंने कहा चलो तिलावत कर लेते हैं। ये सिर्फ वो तिलावत ना करने के बहाने से निकल गए, नहीं तो आए चलो आओ तिलावत करते हैं, उसको बुलाओ। नहीं, वो नहीं तिलावत कर सकता, मुझे पता है। अहमद भाई बात सुने, आप थोड़ा हमल से प्यार से बात कर लिया करते हैं, आप क्यों ऐसे अगले बंदे को चढ़ाते हैं? फिर बात तो खत्म हो रही थी। मुगल भाई, सबर साइड भाई से चौहान साहब ने बोल दिया ठीक है यार गलती हो गई, चलो खत्म छोड़। तो मैंने भी मगर ये जो आपका रवैया ना, ये अच्छा नहीं है यार। नहीं मुगल भाई सुने आपने क्या कहा? मुगल भाई कितनी दफा उसने टाउंट किया सबर साइड को कि एक लफ्ज गलत पढ़ा है। उसके बाद हमारे खलीफा वक्त पे टाउंट किया उसने, उसको यार पहुंचता है नहीं क्या, जो भी है उसकी दफा जो भी हो जाता है। भाई इंसाफ इसको कहते हैं, इंसाफ इसको कहते हैं मेरे भाई, कि उसने टाउंट किया है। जब उसने चैलेंज किया था, मैदान से वो भागा है, मैदान छोड़ के वो भागा। वो चैलेंज कर रहा था कि आओ तिलावत करते हैं, तुम लोगों से तिलावत नहीं होती। अगले बंदे को नीचे उतार दिया है और मैदान से भागा है। ये कौन सा रवैया यार? अगला बंदा, मुगल जी मैंने ये बात की थी, ऊपर ले ले बात कर ले। नहीं बात नहीं देखिए इन्होंने इंसाफ की बात की भाई थी। पानी पी अहमद भाई एक सेकंड जरा, मुगल भाई इन्होंने इंसाफ की बात की थी कि एक आयत मैं पढ़ता हूँ एक आप पढ़ें, ये तो इंसाफ की बात है ना। वो कह रहे थे कि अहमदी कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, तो ये इंसाफ की बात लेते हैं ना, ऊपर ले ले जी, ऊपर ले ले, चलो सही है। एक शर्त आप ऊपर ले ले, बात हो जाती है। मेरी बात सुने, हम ऊपर ले लेते हैं, मगर सिर्फ शर्त एक ही है कि एक जो कोई भी हिस्सा कुरान का पोर्शन है। देखो जी
आप उनसे बात सबर भाई, साइड भाई बात एक होती है मिनट। तहम्मुल से। सबर भाई मैं 1 मिनट में, यहाँ पे अगर तो मुकाबला हो रहा है ना कुरान की तलावत का, तो वो डिफरेंट बात है। अगर तो मुकाबला हो रहा है, देखिए हम सब लोग जो है अजमी हैं, अब मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, गलतियां होती होंगी, ये लोग भी पढ़ते हैं, ये तो का बात है, ये पढ़ते ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इस पे कोई इतराज नहीं है हमें, ठीक है, हम अजमी हैं, गलती हो सकती है। असल तो हमारा जो यही बात अहमद साहब को समझाएं कि यार इधर मुकाबला नहीं हो रहा है। सर हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो है मुगल जी, नबूवत पे और हजरत मुगल जी, ईसा एक अलैहिस्सलाम मिनट, की हयात पे, सुभान उसके ऊपर बात करें। एक मिनट, सुभान भाई एक मिनट, सॉरी मुगल जी, इस बंदे ने 5-6 दफा ललकारा नहीं है मैदान में खड़े होके कि तलावत नहीं होती, आओ तलावत कर लो, आओ तलावत कर लो, एक मैं पढ़ता हूँ एक तुम पढ़ो, ये बात हुई है या नहीं? चलो ऊपर ले लो यार, नहीं टीएम साहब आपको क्या था बीच में आके गवाही देने की जरूरत थी कि वो एमडी है? अच्छा, आपने कहा वो कारी एमडी है, मैं उसे जानता हूँ। सुने जरा, आपके ये अल्फाज मेरी बात आपकी वजह से ये सारा मसला हुआ और तो वो कुछ नहीं हुआ। परवेज साहब एक सेकंड, हो परवेज भाई जी एक जी सेकंड, मसला हो गया। भाई एक सेकंड, एक उनको बोले कि एक आयत पढ़ दें, एक आयत पढ़ दें और एक टीएमएस पढ़ लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी कोई मुकाबले वाली बात है? बुलाएं उनको जी। उनको कैसे पढ़ेंगे? नीचे बैठ के पढ़ेंगे, उनको ऊपर लें तो पढ़ लेते हैं, क्या मसला है? उनको बोले डाले काल। जी उनको इनवाइट कर दिया गया है, इनवाइट कर दिया, अब देखते हैं ऊपर आते हैं कि नहीं। और इसको माफी मंगवाई है मेरे आने तक कि नहीं? यार फिर वही बातें दोबारा, पहले माफी मांगे ना, इसने झूठ क्यों बोला? अहमदन झूठ बोला इसने आके, ये आपको तो गलतफहमी होगी, आपको तो गलतफहमी। सबर साहब आपको यार आपको गलतफहमी होगी थी, इसने झूठ बोला जानबूझकर। इस झूठे को माफी मंगाओ पहले मेरे सामने, इसको को माफी मांगे। और ये झूठ बोलता रहा, इसने आके फिल्म दी, झूठ बोल दिया है, कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ये अहमदी है। अहमद साहब यार माफी मांगे तो बात खत्म हो जाए। सबर साहब ने माफी मंगाया, एक मिनट आप म्यूट रखिए, इसको माफी मंगाओ, इसको छोड़ना नहीं मैंने, इसको इसको मैंने छोड़ना नहीं, इसको माफी मैंने मंगा के छोड़नी है। टीएम साहब, एक सेकंड जरा, टीएम साहब माफी, आपको मेरी तरह ही पता था कि या नहीं? आपने क्यों के खोला हुआ था? ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦਾਈ ਹੈ? ओ जी ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀ ਹੈ जी 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 रेडियो सुने सबर साहब, टीएम साहब इन्होंने जी नहीं पढ़ना, ये ऐसे ही बात करी। सबर साहब आपने ये बात कही थी, सबर साहब आपने ये बात कही थी कि alislam.org से आपने खोला हुआ है। हाँ जी, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਰਾਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਰਾਡੀਓ। नहीं आपने ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ वालिदान डाल दिए। और यार इनको ठहराना होना है, बात फिर लड़ाई करनी थोड़ी करनी है, फिर नजीर साहब आपने फ्रॉड किया है और ये तू तराक पे बात नहीं लेके आए। नजीर साहब आप फ्रॉडी हैं, आपने फ्रॉड किया है। मुगल साहब आपने कहा था कि उनको उठाएं, वो पढ़ते हैं, दोबारा आके वही शर्तें, वही माफियां। देखें ये एक फैक्ट है, मैं भी जमात अहमदिया में पैदाइशी अहमदी हूँ, मुझे पता है कि हम लोगों को किरत पर जोर नहीं दिया जाता, ये भी बताया करें कि जमात से किरत पर जोर नहीं दिया जाता, इस पे जोर दिया करें कि आपको जमात से निकाल दिया गया था, ये बता दिया करें प्लीज। और भी जमात को मैंने खुद ही निकल गया ना, नहीं आपको निकाला, खलीफा को फासिक, खलीफा को फासिक जो समझ लिया, तो आपको जमात से निकाला गया था क्योंकि आपने जमात स्वीडन में इन्होंने खुद किया था। पहले अपने भाई को, ये जब उसको ऐसे टीच करेंगे तो फिर वैसा ही जवाब आएगा। हाँ जी, नहीं ये जो है तारिक चौहान साहब हैं, इनको साहब आपने खुद देखा होगा कि हमने उनको आपकी कहने के ऊपर लिया, ठीक है यार। मेरी बात सुनो, सबर साइड साहब वो लड़ना चाहते बिल्कुल नाइंसाफी है, अमर भाई नूं ते चुको नूं क्यों थले लांदे तुसी? तो वो आगे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो फिर बदमाश नहीं, तो बदमाशी है ना। टीएम अहमद नूं कहो ना
माफी मंगे इन्हें क्यों झूठ बोलिया आपको तुसी लड़का गल लड़का की किस चीज की इन्हें माफी? गवाही दी है किस चीज की माफी? इन्हें उत्ते आगे गवाही दी है कि वाकई ये अहमदी है मैं जानना हूं कौन सी गवाही दी मैंने ये बात कही कि मैं ये गवाही दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, तुसी ये क्या बात कही टीएम थी, मैं साहब गवाही दे रहा हूँ। मैं गवाही देना मैं अहमदी है मैं जानना हूं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਜਾਣ ਰਹੇ ਕੇ ਹੋ ਝੂਠ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਮਦਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਰ ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ तुम बच्चे हो ਸ਼ਰਮਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ नजीर तुम बच्चे हो ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ तुम्हें शर्म नहीं आई ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ तू क्यों आके आख्या कि सबर साइड गलत यार कुरान कौन पढ़ा उतारता है ठाता है वो लड़ाई थोड़ी करवानी है ऐसी बराडे लगमान भाई या ब्राड बंद कर दे या यहाँ ऑन करके तो आप पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो साई साहब लड़ाई ना यहाँ उठाएं लड़ाई यार साई साहब करवानी है। इसको ना उठाएं ना उठाएं पता जहाँ नहीं पे कौन उठा लेता है यार कहीं इनका ऑटोमेटिक तो नहीं लगा हुआ आई डोंट नो कोई ऐसी कोई चीज लगी है पता नहीं साई साहब कहाँ चले गए हैं इधर कोई लड़ाई थोड़ी करनी है आगे कोई मतलब ये बराड़ लगी है इधर आके लड़ना है ये तो तमाशबीन है डेली इन्होंने लड़ना होता है डेली शुगर लगाना होता है अच्छा सबर साइड भाई अभी जो ना टीएमएल भाई को बोल दे कि इनको भी गलत फहमी हुई मुगल जी थी आपके और कहने के ऊपर उनको लिया था थोड़े ऐसा जाहिद जमील साहब बैठे हैं ना देखिए मौलाना जाहिद जमील साहब बैठे हुए हैं इनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं इनसे जो है इनके जो हमारे दरमियान इख्तलाफी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं तो जाहिद जमील साहब आइए खत्म नबूवत के ऊपर क्या ख्याल है आज गुफ्तगू ना हो जाए आपके साथ आप भी बड़े माशाल्लाह आलिम दीन हैं मुगल साहब आखिरी बार मैं आपको कह रहा हूँ उनको आपने अगर ऊपर बुलाना है आके कहें कि आते हैं वो एक आयत तिलावत करेंगे एक आयत मैं तिलावत करूंगा उसके बाद मैं ये बात कहूंगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ चलें मैं इतनी शर्त मैं अपनी तरफ से इतनी लीनियंटी दे देता हूँ मगर आपने ये उनसे पहले गारंटी ले ली टीएमएल साहब मेरी बात सुने टीएमएल साहब मेरी बात सुने आप इतना थोड़ा सा मुंह से कह सकते देखो वो कितना ज़रफ है उस भाई का या सबर साइड का मैंने क्यों ऐसे मुगल साहब मैं ऊपर आके ये बात हरगिज नहीं की कि मैं गवाही देता हूँ कि ये मैंने ये बात हरगिज नहीं की आपने ये नहीं कहा ये अहमदी है आपने ये नहीं कहा ये अहमदी है मैंने कहा तिलावत अहमदी की है हाँ जी अभी किसकी निकली है बाद में ठीक है तो बाद में जिस मर्जी की निकल जाए हाँ तो फिर गलत जुबानी होगी ना टीएमएल भाई क्या यार सबर साइड भाई अभी आपको एक मिनट चले ठीक है मुगल जी मैं इस बात पे माजरत करूंगा वो इस बात पे माजरत करे जो उसने सबर साइड को कहा है कि कुरान मजीद का एक लफ्ज उसने तिलावत में गलत पढ़ा है चले इस बात पे मान लें अच्छा अभी आपने खुद ही इस चीज को तस्लीम किया है आपने कहा था कि ये अहमदी की तिलावत है और बाद में आपके घर से गवाही आई है साहब ने क्या कहा मुगल जी उन्होंने ये बात कही थी कि सबर साइड ने एक लफ्ज कुरान मजीद का गलत पढ़ा है यार ये अमर नजीर साहब को कौन ये तो क्लियर करो क्या अमर नजीर साहब को ले लें ऊपर उनको नजीर भाई को ले ले अभी आप साई साहब वो बंदा माइक लगाता है माइक ना लगाए प्लीज नहीं माइक लगाते अहमद भाई यार नहीं माइक लगाते छोड़ दो यार क्यों जिद करते आपको लिया है तो ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ मैं हुणे ही आया हूं मैं एक दो बार लिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾ ਇਸ ਗਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ये देख ਸਬਰ लें ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਨੇ ਤੇ नजीर का ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ बेईमानी की है ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ नजीर ने झूठ बोला था ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ कि सबर साइड ने एक ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੁਕਮਾਨ तू चुप करना मैं भी ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਅਹਿਮਦੀ ਏ तू क्यों झूठ बोलिया कि इसे ਓਏ ਕਜ਼ਾਬਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ओ चल कज़ाबा ਬੇਈਮਾਨਾ चलो भाई शर्म नहीं आती झूठ बोलने कज़ाब भाई ये लगमान ਓਏ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਜ਼ਾਬ ਆਦਮੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਣੀ इसको ਹੈ नीचे फेंको ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਫੇंकਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ तू मंगा ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਓਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਿਆਂਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ बोला तुमने कुरान पे झूठ बोला थैंक यू वेरी मच तुमने कुरान पे झूठ बोला कि इसने कुरान गलत पढ़ा है तुमने माफी मांगनी है
इतनी इतनी उम्रें हो गई हैं यार, पता नहीं इसकी यही औकात है, इसको नीचे रखें। चल नीचे बैठ के टैप टैप करो, बात करते हैं यार। नीचे नीचे बैठ के टैप टैप करो, तुम्हारी यही औकात है। गालियां निकाल रहा है ऊपर आके। यार साहिब साहब, आपको समझ नहीं लग रही कि गालियां निकाल रहा है बंदा यार? टी साहब, अगर आपसे टी भाई, अगर आपसे कहाँ टी अहमद भाई, अगर आपसे भूल चुक हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई भूल चुक हो सकती है। टी अहमद कोई ना बोले, कोई ना बोले। टी अहमद साहब एक सेकंड यार, एक सेकंड। टी अहमद भाई एक सेकंड, म्यूट ऑन करना। टी अहमद भाई म्यूट ऑन करना। जी 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 जी। देखें, मुझे गलती लगी, ठीक है, और मैंने सबके सामने एडमिट कर लिया कि मुझे गलती लगी है। ठीक है जी, मुझे भी गलती को एडमिट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मुझे भी गलती लगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात आगे चलें, बुलाएं उसको ऊपर। गलती लग जाती है हर इंसान से, सबर भाई, हर इंसान से गलती हो जाती है। कोई ऐसा गलती मान लेना जो है, उससे कोई शान नहीं घटती किसी इंसान की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बात गलत है सुभान भाई के मैंने ऊपर आके ये कहा कि मैं गवाही देता हूं कि ये वही है। नो, इसने मेरे से पूछा कि ये एमडी की तिलावत है, मैंने कहा हाँ एमडी की है। तुम्हारे चैलेंज पे आते हैं, तुमने चैलेंज किया कि एमडी को तिलावत नहीं कर सकता, चलो तिलावत करते हैं एक आयत। आपने असल में आप जो वेबसाइट से चल रही थी, चूंकि एमडी की थी, आपने ये समझ लिया होगा। मेरे दिमाग में यही था कि ये एमडी की है, खत्म बात। मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बंदे से मैं अड़ा इसलिए हूं कि इसने पहले सबर साइड साहब को और खलीफा वक्त को बहुत गलत बातें कही हैं। अब देखे ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा थे, खलीफा खिलाफत राशिदा में, उनके मतलब जो खत्म नबूवत के इजमाई भाई हैं शियों ने कुरान मजीद के मतलब जो लिखा है, अगर हम वो सामने पेश करना शुरू कर देंगे तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है ना, बाकी बचता। तो मैं उसको अभी नहीं छेड़ा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं वो हवाले भी साथ लगा दूंगा, साथ साथ ही। बेहतर ये कर दिया, अब उनको पता नहीं है वो नहीं आता, उसको पता है कुरान मजीद पढ़ना है, कुरान मजीद पढ़ना। ये भी आयत उसने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि ये आयत वो सुनता रहता है, ये पढ़ता रहता है। नहीं तो रैंडम आयत निकाल के बताएं उनको, वो नहीं पढ़ सकते कुरान मजीद। चलो ये मामला तो क्लियर हो गया ना, आपको भी गलतफहमी लगी, वो चलो सही हो गया, अच्छी बात है। अभी बात करने तहम्मुल से किया करें यार, आप समझदार बंदे हैं। कितने हम सबर साइड भाई कितने आधे घंटे से ऊपर बैठे हुए थे, किसी ने कोई बात ऐसी की है? मुगल जब से ये भाई आया ना, कसम से नहीं, मुगल भाई आधे घंटे से वो सबर साइड साहब को दबाए हुए थे कि तुमने कुरान मजीद गलत पढ़ा। तुम लोगों में से किसी की जुबान खुली कि नहीं यार इसने कुरान मजीद सही पढ़ा है, कोई गलती नहीं की? चलो उसको ऐसा करते हैं कि उस बंदे से ये टी अहमद साहब ऐसा करते हैं कि दूसरा बंदा मैं बुला लेता हूँ। एक मिनट, let me finish, okay? मुगल साहब, आपको उसी वक्त खोल के कह देना चाहिए था कि नहीं इसने बिल्कुल सही पढ़ी है आयत। उसने सबर साइड साहब को भी दबाया और खलीफा वक्त पे भी टाउंट करता रहा, ठीक है। मैं इसलिए उसके आगे जिस तरह की लाठी उस तरह की भैंस, जो करेगा वो भरेगा। अच्छा टी अहमद साहब, मैं एक कारी साहब एक को बुला लेता हूँ यहाँ पे। आप मेरे साथ कारी को क्यों बुलाएंगे? सबर साइड में अगर सबर साइड में सही पढ़ा हुआ, अगर इसने कुरान सही पढ़ा हुआ सर, तो मैं आपको नाम दूंगा, आप बोलेंगे। अबू बकर साहब, आपके कारी की क्या गारंटी है कि आप अपना कारी बुला लेना, आप अपना कारी भी बुला लेना। नहीं तो गलती मेरा अबू बकर साहब, क्या मसला क्या है? अगर इंसान मसला क्या है? और भाई मसला ये है कि आप वो झूठे लोग हैं कि जिन्होंने तमाम उलमा के ऊपर, मुहद्दिसीन के ऊपर झूठ बोले हुए हैं। और वो भाई हमने कहा बोले हैं, मुहद्दिसीन झूठ बोलते हो कादियानियों, झूठ बोलते हो। इतने बड़े उलमा ओए दीन के बारे
اویس ابھی اس امت میں نبی تو کوئی نہیں ہے نا, یہ علماء ہی نبی ہیں. تم نے کتنا ظلم کیا, تم نبیوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو, رسولوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو. خدا دا خوف کھاؤ اور شرم کر لو, قادیانی ہو, کافرو, ٹھیک ہے لگا لو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مباشر صاحب ایک سیکنڈ, 2-3 میں ورس کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے بتانا کہ کون سی غلطی کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جی بادشاہ صاحب, کوئی اس میں غلطی لگتی ہے آپ کو؟ اس میں جو عام بندہ پڑھنے والا ہے نا تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں جہاں پہ کھڑی جزم جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اگر اس قسم کے پوائنٹ کو قاری ڈھونڈے تو نہ تو آپ قاری ہیں نہ میں قاری ہوں. ادروائز جو ناظرہ پڑھنے والا ہے تو اس کے مطابق ٹھیک ہے, اس میں کوئی اتنی خاص نہیں, کوئی ڈیلیبریٹ غلطی نہیں کر رہے. ڈیلیبریٹ کوئی غلطی نہیں ہے. اگر تدوین سے, اگر آپ تدوین سے دیکھیں گے تو پھر اس میں غلطیاں تھیں. اس طرح ایک وہ مساک نبیین والی میں نے آیت پڑھی تو وہ علامہ صاحب اوپر آئے, انہوں نے نا آ کے مجھے اچھا بڑا دبا دیا, تو نے سارا قرآن ہی غلط پڑھ دیا. نہیں وہ غلط بات ہے. ایک 2 زیریں ساتھ پڑھی, میں نے کہا اس میں کیا غلطی ہے, کہتے نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ قرآن دیکھو, میں کوئی اہل زبان تو ہوں نہیں, نہ میرا دعویٰ ہے, نہ میں عرب ہوں, نہ میں حافظ ہوں, نہ میں قاری ہوں. میں نے تو گھر میں عام ناظرہ پڑھا ہوا ہے, تو کوئی غلطی تو خدا تعالیٰ معاف کرنے والا. تو اس میں کون سا اتنا بڑا کفر لازم ہو گیا؟ اگر آپ نے مدرسے سے پڑھا ہے, آپ نے 7 سال لا کے ہی حفظ کیا. پھر اب دوبارہ پتہ کیا ہوا کہ ٹی ایم ایس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چیلنج کر لیتے ہیں, ایک آپ پڑھو ایک میں پڑھتا ہوں. نہیں, قرآن پہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ اس بات پہ آ نہیں رہے. دوسرا وہ اس کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ تو نے وہ جو پہلے بات کیا اس کی معافی مانگو. یہ صبر سائد صاحب میں نے نہیں چیلنج کیا تھا, صبر سائد صاحب میں نے نہیں چیلنج کیا تھا, اس نے سارے ایم ڈیوں کو چیلنج کیا تھا کہ کوئی ایم ڈی اوپر آ جائے میرے ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھ لے, میں تب اوپر آیا تھا. آپ کو نا, آپ میرے بھائیوں کو, میرے پیارے احمدی بھائیوں کو, میں نا آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, مفہوم ہے اس کا, میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ پڑھیں گے تو بڑی تدوین سے, لیکن ان کے حرف جو ان کی جو تعلیم ہے نا قرآن کی, وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں ہوتی. استغفر اللہ رب من کل. یہ کیا آواز بند آ گئی ہونی. صبر صاحب بھائی, جی آپ کو غلطی لگی ہے, میں نے نہیں اوپر چڑھ کے چیلنج کیا تھا, میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا. سمجھ آ گیا, میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا. بات یہ ہے کہ صبر سائڈ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرتے نا, چیلنج آیا تو یہ تو ان کو بھائی میں ہار گیا. نہیں ابھی پتہ چل جائے چیلنج ہوا کہ نہیں. اور صبر صاحب نے جو تلاوت پہلے وہ کی تھی نا, وہ بھی میں سنانے لگا ہوں, ذرا سننا. ذرا میری سکرین اگر بڑی ہو جائے تو کر دے, نہیں تو ایسے ہی سنا دیتے. پہلے نمبر پہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو اس کی پہلے عربی پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھنا کہ احمدی کیسے پڑھتا ہے, اور مسلمان نے تو پڑھ دی ہے, ٹھیک ہے. پڑھوں پھر بتاتے ہیں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ إِلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. ٹھیک ہو گیا. اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں یہ اوپر سے دیکھ کر پڑھا آپ نے؟ تو کہاں سے پڑھنا تھا؟ دیکھ نہیں زبان نہیں پڑھا کہ اوپر سے دیکھ کر پڑھا؟ اوپر سے دیکھ کے پڑھا. سارے غلط پڑھا یار. خدا کا خوف کہیں ایک بھی لفظ صحیح نہیں اس میں آپ نے بولا ایک بھی لفظ. میں سنتا رہی نہیں کہ صحیح کیسے ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ غلط پڑھا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں. اخذ اللہ، کیا اس میں غلط ہے؟ کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس میں کیا غلط ہے؟ دوبارہ پڑھیں ایک سیکنڈ. میں نے سمجھا شاید آپ نے زبان نہیں پڑھا، سارے راہ بھی غلط پڑھے ہیں. چلو ٹھیک رہے ذرا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کیا غلط ہے اس میں؟ چلو پھر پڑھ لینے پھر پڑھ لو پھر پڑھ لو. پڑھ رہا پہلے کی طرح پڑھیں جس طرح پہلے پڑھ رہے تھے. وہ عامر صاحب آپ اپنی غلطی مان لیں. عامر صاحب کی تو مادری زبان عربی ہے ماشاءاللہ. نہیں غلط وہ تو صحیح پڑھیں گے. غلط بات کر رہے ہیں. میں مجھے بتایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اس میں کیا غلط ہے؟ یہ ٹھیک ہے آگے پڑھیں. میثاق النبی یہاں پہ رکھنا ہے، یہاں پہ مغل رکھ سکنا. انہوں نے کہا سارا غلط پڑھا ہے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ یہ میں نے پڑھا اس میں کیا غلط ہے، کہتے یہ ٹھیک ہے. کہا نا انہوں نے ٹھیک ہے. تو پہلے کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یہ اوپر بولتے ہی سارا غلط پڑھا ہے. کہتے ہو میں لا دیتا ہوں پھر اسے سن لے جو آپ نے پڑھا تھا. نہیں میری بات سنیں. انہوں نے بولا کہ سارے ہی عراب غلط پڑھے. جب میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھا تو میں نے بولا کہ اس میں کیا غلطی ہے. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ابھی آپ کے سامنے مانے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کہا ہے نا انہوں نے. اور چلو یار یہ سارا دن لڑیں گے. بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بندے نے پڑھا اور غلطی ہو سکتی ہے. تو خدا دلوں کے حال جاننے والا ہے. اس نے کون سا جان کے پڑھا. اور نہ ہمیں سے کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل عرب ہیں اور ہم الازہر یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. ویڈیو ان کی تلاوت سے پہلے لفاظ سنے. ایک غیر احمدی کا قرآن سن لے اور ایک احمدی کا. یہ کیا چیلنج نہیں ہوتا؟ غیر احمدی نہیں ہوتا. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک تو گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی چیلنج نہیں ہونا چاہیے یار. ٹھیک ہے، غیر احمدی بھی بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور احمدی بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور دونوں میں غلطی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور نہ بھی کرنے والے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. ہم کوئی اہل زبان تھوڑی ہے. اس اوکے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی توسیع کرے کوئی اصلاح کے نظریے سے تو اس کا مشورہ مان لینا چاہیے اور اصلاح اپنی کر لینی چاہیے. اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ نہیں میں جو پڑھیا ہوئی ٹھیک ہے، نہیں تم پڑھیا ہو یار میری کریکشن کرا دے. اس میں تو صدقہ ہی جاری ہے، ثواب کا کام ہے. مجھے کوئی سکھائے قرآن میں تو اس سے سیکھوں گا اور میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ الحمدللہ کہ اللہ کے کلام کو اس نے میری کریکشن کی ہے. بڑی اچھی بات ہے. سکھانے کا موڈ ہونا چاہیے نہ کہ کیچنگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی سیکھ جائے. اور سیکھنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی غلطی مانے اور اپنے کریکشن کر لے. تو دونوں طرف سے یہ ہوتا. بات کہاں پہ پتہ ہے ماسٹر صاحب بگڑی تھی؟ جب ٹی ایم صاحب اتنا آیا نا، جب میں نے شروع کیا نا دوبارہ کہ یہ دیکھیں اس میں کیا غلطی ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ٹی ایم صاحب یہ اوپر آئے ہیں، انہوں نے آگے کہا کہ آپ نے اوپر چڑھتے ہی آپ نے اس کو آپ نے سارے عراب غلط پڑھے ہیں. تو پھر اپنی مدد کریں جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ چلو یار چھوڑ دو. قرآن کریم کا معاملہ ایک دوسرے سے سیکھو. اس میں برکت ہے، خیر ہے، شفا ہے. کوئی اور بات پہ لڑنا ہے تو کوئی اور گل دیتے ماں بہن کر لو چھاڑ دے. صاحب نو تے لے لو یار. ٹی احمد صاحب لگتا کہ گرم علاقے چ رہندے نے، بابا گرم رہندے نے ہیں سب سائڈ بھائی. مغل جی بات یہ ہے کہ بات بندے کو انصاف کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بندہ صرف اس لیے یہاں سے گیا ہے کیونکہ اس کو تلاوت کرنی پڑنی ہے. اس کو پتا ہے وہ آپ کو عالم کہتا ہے نا. نہیں مولانا بھائی نہیں، غلط بات ہے. آپ لے رہے، آپ اس کو صرف اتنا کہیں کہ آئے ابھی قرآن مجید پڑھ کے دکھائے. جیسے یہ پہلے ٹاؤنٹ کر رہا تھا نا
کہ ایک ایک لفظ پڑھ کے تو خلیفہ ہمارے خلیفہ وقت کی طرف وہ ٹاؤنٹ کر رہا تھا. مجھے اس لیے غصہ چڑھا یار، کسی صبر سائد صاحب کو اس نے کتنی دیر کہا میں اوپر آیا، بالکل نہیں آیا. حالانکہ صبر سائد سے بھی اس نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر تو یہ لوگ حضرت بلال کا تو بہت زیادہ مذاق اڑائیں گے، جو کہ اشہدو کو اسادو پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہی بات پسند تھی کہ بلال اذان دے گا. بمباسٹک بھائی، ایک حدیث ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید قرات سے پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب ہے، لیکن جو رک کے اور جھجک کے پڑھتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. یہ حدیث ہے. یہ تو